وزیر اعلیٰ پنجاب انسپیکشن سرویلنس مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ برگیڈیئر بابر علاؤدین ستارہ امتیاز ملٹری ریٹائرڈ کے ساتھ خصوصی انٹرویو۔ بیورو چیف آف نیوز سے میر حیدر علی لاشواری کے ساتھ۔ جی بالکل، میں ہوں میر حیدر۔ میرے ساتھ جو آج شخصیت موجود ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر علاؤدین صاحب، جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے چیئرمین پرسن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو ملٹری امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ سر بہت شکریہ، آپ نے مجھے ٹائم دیا بندہ ناچیز کو۔ اور سر یہاں سے 3-4 دن پہ ہیں، وزٹ پہ ہیں، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ سر بتائیے گا وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے کیا انیشیٹو ہیں، کیا انقلاب آ رہا ہے اور کیا عوام کو ریلیف ملنے جا رہا ہے، تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی انیشیٹو تو بہت زیادہ ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ اتنے مختصر ٹائم میں ان کو ایک ایک کر کے بیان کرے تو شاید وقت ہی ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ان کے انیشیٹو زندگی کے ہر شعبہ میں ہے، صحت میں، تعلیم میں، نوجوانوں کے لیے، کسانوں کے لیے، معذوروں کے لیے، بچوں کے لیے، ینگ سٹوڈنٹس کے لیے، پھر اس کے بعد اور سوشل ویلفیئر اقلیتوں کے لیے ان کے انیشیٹوز ہیں، عام پبلک کے لیے ہیں، جس میں ان کی بہت ساری لونز کی اسکیم ہے جو عوام کے لیے ہے، ٹریکٹر کی اسکیم ہے جو کہ عام لوگوں کے لیے ہے، باقی کسان کارڈ ہم جانتے ہیں انہوں نے ایشو کیے ہیں، لائف سٹاک کے کارڈ انہوں نے دیے ہیں، معذوروں کو ہمت کارڈ گورنمنٹ نے دیے ہیں، اقلیتوں کو اقلیتی کارڈ گورنمنٹ نے دیے ہیں۔ تو یہ اتنے انیشیٹوز ہیں کہ جس سے عام آدمی مستفید ہو بھی رہا ہے، اور آئندہ آنے والے وقت میں پنجاب کے لوگوں کی بہت بڑی تعداد ان انیشیٹو سے مستفید ہوگی، ان کی زندگیوں میں بہتر آئے گی، ان کی سوشل اکنامک ڈیولپمنٹ ہوگی، لوگ اپنا نیا کاروبار شروع کر سکیں گے، بچے غریبوں کے تعلیم، اعلیٰ تعلیم سے اس لیے محروم نہیں رہ سکیں گے کہ ان کے والدین کے پاس ریسورسز نہیں ہیں۔ جو ہونہار بچے ہیں جو میرٹ پہ کوالیفائی کرتے ہیں ان کو اسکالرشپ بھی مل رہی ہے، ان کو لیپ ٹاپ بھی مل رہے ہیں۔ اسی طریقے سے جو بچے کچھ تعلیم حاصل کر چکے ہیں، اپنا کو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، آسان کاروبار اسکیم کے تحت ان کو قرضے مل رہے ہیں، اور یہ جتنے بھی قرضے ہیں یا جو بھی گورنمنٹ لوگوں کو کاروبار کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے دے رہی ہے، ان پہ کوئی سود نہیں ہے، جتنے کو پیسے لے گا اتنے ہی واپس کرے گا آسان ساتھ میں۔ غریبوں کو گھر دیے جا رہے ہیں، اپنا چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت، جن کے پاس کوئی گھر نہیں ہے ان کو پلاٹ 4 مرلے کے دیے جا رہے ہیں۔ تو ایک بہت لمبی لسٹ ہے جو کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے چیف منسٹر پنجاب نے اپنے اقدامات کی شکل میں وہ شروع کر رکھے ہیں کام۔ ان کو چونکہ میں سارا دن دیکھتا رہتا ہوں، ڈی جی خان میں بھی 4 دن سے یہ چیزیں دیکھ رہا ہوں، اور جب عوام کو فائدہ پہنچ رہا ہے، لوگ بینیفیشریز ہیں، تو ظاہر ہے لوگ اس سے کیسے انکار کر سکتے ہیں۔ اوورآل میں کہوں گا کہ ان میں سے بیشتر اقدامات جو ہیں، جو کہ اجتماعی نوعیت کے بھی ہیں، جو انفرادی نوعیت کے بھی ہیں، وہ کسی انقلاب سے کم نہیں۔ اچھا سر، اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی عوام تک تو ریلیف پہنچ رہا ہے جو سی ایم صاحبہ کا انیشیٹو ہے، لیکن کسان اس میں گلہ بھی کرتے ہیں کہ جی ہم تو رل گئے ہیں، ہمیں کوئی اس میں ریلیف نہیں ملا۔ تھوڑا سا اس بارے میں آپ بتائیے گا کہ کسان یہ گلہ شکوہ کیوں کر رہے ہیں پنجاب گورنمنٹ سے؟ دیکھیے کسان کو گورنمنٹ یہ نہیں کہ کچھ نہیں دے رہی، جو آپ کو میں نے کہا ہے ٹریکٹر کسانوں کے لیے ہیں، اس کے بعد جو سولر پینل کسانوں کو ٹیوب ویل کے لیے دے رہی ہے، پھر جو کسان کارڈ دیے جا رہے ہیں چھوٹے کسانوں کو، کھاد اور بیج کے لیے بھی کسانوں کے لیے ہیں، پھر مویشیوں کے لیے لائف سٹاک کے بعد میں جو کارڈ دیے جا رہے ہیں جو گورنمنٹ کی اسکیمز ہیں وہ بھی کسانوں کے لیے ہیں۔ جہاں تک گلہ کرنے کا تعلق ہے، گلہ ایک حوالے سے یا ایک کانٹیکس میں کسان کرتا ہے، وہ گندم کی سپورٹ پرائز، کہ گندم کی سپورٹ پرائسز اور گورنمنٹ نے مقرر نہیں کی۔ اصل میں چیف منسٹر صاحبہ اس کو ڈی ریگولیٹ کرنا چاہتی ہیں۔ ابھی حکومتوں کے بس کی بات نہیں رہی پاکستان جیسے ملک میں، بلکہ دنیا میں کہیں پر بھی، کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گندم خریدے اور پھر لوگوں کو سبسڈائز کر کے بیچے، اکانومی اتنا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ ابھی دیکھیں اگر گورنمنٹ گندم کی سپورٹ پرائز 4000 روپیہ پر من رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آٹا تو پھر آپ کا 150-160 روپے بن جا کے لوگوں کو ملے گا۔ تو وہ اگر 30%، 35% کسان ہیں تو 60-65% لوگ تو جو ہے وہ جو خود کھیتی باڑی تو نہیں کرتے، تو انہوں نے تو گندم آٹا بازار سے خریدنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے سی ایم نے اس کو ڈی ریگولیٹ کیا ہے، اور وہ کہتی ہیں کہ کسان جو ہے نا مارکیٹ کی پرائز کے اوپر، جو مارکیٹ کی ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر وہ گندم بیچے گا اور اس کو اس کی قیمت ملے گی۔ لیکن اس میں بھی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کسانوں کا احساس نہیں کیا۔ 5000 روپے پر ایکڑ وہ چھوٹے کسانوں کو دے رہی ہے۔
हाल देखने में 5,000 शायद कम है, लेकिन ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है कि उनको एहसास किसानों का ज़रूर है। बाकी जो दूसरा किसान है, आलू की बेहतरीन प्राइस मिल रही है, मकई की बेहतरीन प्राइस मिल रही है, पिछले साल चावल की प्राइस भी ठीक थी, नुकसान किसी को नहीं हुआ। गंदम में एक फैक्टर है, लेकिन मुझे यकीन है कि वक्ती तौर पे मुश्किलात हैं, मगर 2-3 सालों में ये चीज़ें सेटल हो जाएंगी, गंदम की प्राइस भी सेटल हो जाएगी। और फिर यही लोग जो है आज जो परेशान हैं, गवर्नमेंट से शिकवा शिकायत करते हैं, ये फिर बाद में जाके खुद ही कहेंगे कि गवर्नमेंट ने ठीक किया, क्योंकि सब्सिडी से वक्ती तौर पे तो निज़ाम चल सकता है, लॉन्ग टर्म निज़ाम नहीं चल सकता। अच्छा सर, क्या लगता है पंजाब गवर्नमेंट अपना टेन्योर 5 साल कंप्लीट करेगी मैडम मरीम नवाज़ की क़यादत में? जी इंशाल्लाह पूरा करेगी, कोई रीज़न नहीं है कि ना पूरा करे। मैं तो एक गुनाहगार इंसान के सी से कर, बाकी तो अल्लाह जानता है। एक पूरा करना चाहिए, इतना अच्छा काम भी कर रहे हैं, स्टेबिलिटी भी है, किसी को कोई इशू इस वक्त पंजाब के हद तक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो क्यों गवर्नमेंट को टाइम पूरा करना चाहिए। देखें ये जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, अगर गवर्नमेंट टाइम पूरा करेगी तो गवर्नमेंट इन पॉलिसीज़ को मुकम्मल कर सकती है, नहीं तो क्या होगा, अगर जब हुकूमत ख़त्म होती है, इन बिटवीन कुछ चीज़ें प्रोजेक्ट वहीं पर आ जाते हैं, अगली गवर्नमेंट्स ओन नहीं करती, अवाम भी खजल ख्वार हो जाते हैं, पैसे भी ज़ाया होता है। जैसे भी आप देख रहे हैं, मैं भी अस्पताल में गया था, यहाँ पर भी 1-2 प्रोजेक्ट्स ऐसे ही हैं, तो इंशाल्लाह गवर्नमेंट टाइम पूरा करेगी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये अभी सुन रहे हैं बानी पीटीआई के हवाले से कि 5 तारीख को इनकी ज़मानत हो रही है, क्या आप देख रहे हैं कि जो पीटीआई का जो एक एंटी स्टैब्लिशमेंट बयाना था, जो अपनी अफवाज के ख़िलाफ़ ये नफ़रत अंगेज़ सोशल मीडिया पे, थोड़ा सा इस बारे में बताएं, क्या लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन है 5 तारीख को? देखिए वो तो अदालत ने फैसला करना है कि उनको रिहा करना है या नहीं करना, वो तो ज़ाहिर है उसके ऊपर आप और मैं क्या कमेंट कर सकते हैं। एक अदालती निज़ाम है, उनके ऊपर कोई सियासी केस नहीं है, क्रिमिनल नेचर के केस हैं उनके, उसमें पैसे का करप्शन के मामला हैं, उनके मॉरल मामला हैं, वो साहब को उनका कोई सियासत से तो ऐसा ताल्लुक़ नहीं है। सियासतदान अगर जुर्म भी करे तो लोग कहते हैं जी कि इसके साथ सियासी मुकदमा हो गया, तो बाकी अदालत ने फैसला करना है। लेकिन चूँकि उनके पास कोई एक केस तो उनके ऊपर नहीं है ना जी, काफ़ी केसेज हैं जिसमें सब में क्लियर होंगे, तो ज़मानत भी इस चीज़ का कोई सबूत या वो तो नहीं होता कि आपने जुर्म नहीं किया। ज़मानत वक्ती रिलीफ होती है, अल्टीमेटली तो आपको अदालत से बेगुनाह होना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस कॉन्टेक्स्ट में जिसमें सब में क्लियर होंगे, तो ज़मानत भी इस चीज़ का कोई सबूत या वो तो नहीं होता कि आपने जुर्म नहीं किया। ज़मानत वक्ती रिलीफ होती है, अल्टीमेटली तो आपको अदालत से बेगुनाह होना पड़ता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। बाकी बयानिया जो उनका है हम सब जानते हैं, उस बयानिया से अभी भी बाज नहीं आए, अभी भी ट्वीट्स देख लें उनकी, फ़ौज के ख़िलाफ़ भी हैं, आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी हैं, और इस माहौल में ख़िलाफ़ हैं जिस माहौल में फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शानदार फतह हासिल की है कि हर पाकिस्तानी फ़ौज को दाद दे रहा है, फ़ौज के गीत गा रहा है। इस मरले पे भी अगर कोई फ़ौज को हदफ़ तनकीद बनाता है, फ़ौजी क़यादत के ऊपर अननेसेसरीली तनकीद करता है, किरदार कशी करता है, तो उसको फिर मैं क्या कहूँगा, लोगों का काम है फ़ैसला करना कि वो किधर खड़ा है। सर आपने देखा माशाल्लाह हमारी जो पाक फ़ौज है वो उसने दुश्मन की आंख में आंख डाल के उनके जो इरादे थे निस्तो नाबूद किए हैं। तो ये बताएं कि इंडिया जो हमें बार बार धमकियां देता है, कभी पानी बंद कर देंगे, कभी ये कर देंगे, हमारी फ़ौज के क्या हौसले हैं। और आप माशाल्लाह अल्लाह ने आपको एक इज़्ज़त दी, मकाम दिया, आप फ़ौज में भी रही हैं, तो आप क्या समझते हैं कि ये जो बयाना आ रहा है पीटीआई की तरफ से अपनी फ़ौज के ख़िलाफ़, ये तो फिर इंडिया के साथ इनका बयानिया जाके मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। दुश्मन की बातों को जाकर स्ट्रेंथन करते हैं। दुश्मन भी पाकिस्तान की फ़ौज को टारगेट करता है, वो तो इसलिए टारगेट करता है कि उसको पाकिस्तान की फ़ौज में अल्हम्दुलिल्लाह नाको चने चबवाए हैं। जो हमने देखा जो उनके साथ हुई है, उनको जगह नहीं मिल रही कि जाके छुपे हो। तो ये लोग जो है अगर ये भी सियासत की आड़ में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो मेरे नज़दीक तो ये किसी सूरत भी ये तो मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। अगर इस वक्त अपनी फ़ौज को टारगेट करे ये कोई वक्त नहीं। लेकिन मैं इससे ज़्यादा परेशान इसलिए नहीं होता कि इनके अंदर कुछ एलिमेंट्स रह गए, बाकी जो थे काफ़ी असाब को समझ आ गई, और जो कुछ रह भी गए हैं उनका लोग सोशल मीडिया पे खुद ही फिर जवाब देते हैं। वो बाहर बैठे हुए ज़्यादातर उनमें से, मुल्क में तो उनमें से कम है, लेकिन जो भी ऐसा कर रहा है अभी पब्लिक खुद ही इनको आड़ा हाथ लेगी, क्योंकि पब्लिक ने देख लिया है कि फ़ौज कितनी ज़रूरी है, एक मजबूत फ़ौज। और जब फ़ौज को मुतनाज़ा बनाते हैं तो उसका नुकसान रियासत को भुगतना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनकी सियासत कम अज़ कम इस तर्ज़ सियासत से ये कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो सकते। अच्छा सर, डीजी खान में आप आए हैं तो 2-3 दिन का आपका विजिट था। डीजी खान में पहले भी आप रहे हैं, शायद इतना मैं डीजी खान को ना जानता हूँ। डीजी खान के शहरियों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से क्या इनिशिएटिव हैं और क्या इनकलाबी आ रहा है? थोड़ा सा एक मैसेज दे दें हमारे शहर के।
डीजे खान के लोगों के लिए पैगाम ये है कि आप भी उतने ही अहम है जितना पाकिस्तान का किसी और शहर के रहने वाले हैं, चाहे वो लाहौर है, सेंट्रल पंजाब का कोई शहर है। अभी आप दूर भी नहीं हैं, अभी तो आपके बेहतरीन मसाफतें इतनी कम हो गई कि आप भी सुबह जाके शाम को लाहौर से वापस आ सकते हैं। इसलिए आपका महल वकूफ़ या जोग्राफिया के लिहाज से बहुत अहम तरीन जगह के ऊपर है। और आप जिस तरीके से डीजे खान के लोग डटे हुए हैं इन दहशत गर्दों के ख़िलाफ़, उनके हौसले की, उनकी बहादुरी की तारीफ़ करनी पड़ती है। मुहब्बे वतन लोग हैं और पैगाम इनके लिए ये है कि इनके जो रोज़मर्रा के मसाइल है, डीजे खान के सबसे बड़ा सीवरेज का मसला है, वो भी इंशाल्लाह अगले साल हल होने जा रहा है। न सिर्फ डीजे खान का बल्कि तौसा और कोट शुट्ठा का भी मसला हल होने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर साहब वैसे आप किंडस हाईवे की उसकी नए सिरे से तमीर का ऐलान कर चुके हैं, कैंसर हॉस्पिटल का ऐलान कर चुके हैं। तो अभी आपके शहर में जो मेजर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं या तो कंप्लीट हो चुके हैं, जो होने वाले हैं, और ज़िंदगी की तमाम सहूलतें यहाँ पर मुयस्सर हैं। लेकिन चूँकि बढ़ती आबादी के साथ मसाइल हर वक्त ख़त्म तो नहीं होते, तो गवर्नमेंट की तवज्जो आपकी तरफ है, आपके लोग कैबिनेट में हैं, पार्लियामेंट में लोग आपकी नुमाइंदगी अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मैं भी आके यहाँ पर देखा है गुज़श्ता 3 दिनों में कि वो डीजे खराब नहीं है जिसको लोग कहते थे पसमानदा या दूर अफ्तादा है। आबादी बढ़ रही है, मसाइल डेफिनेटली कुछ हैं, लेकिन अभी भी डीजे खान पंजाब के बहुत सारे शहरों की निस्बत तरक्की के लिहाज से बेहतर है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ मौजूद थे बाबर इलाउद्दीन साहब। तो आपने सुनी इनकी गुफ्तगू। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया और मैं दुआ गो हूँ